सबको विदित है कि हम ये वॉक्सिट का दूसरा लाइव सेशन मीटअप कर रहे हैं। इससे पहले का मीटअप बहुत ही सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुआ दिसंबर के महीने में पिछले साल। आप सभी के सहयोग से ही ऐसा हो पाया और इसीलिए हमने ये निश्चय किया कि क्यों ना इस मीटअप को हम दोबारा किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से किया करें आप सभी के साथ। तो इस बार हम जनवरी माह में लेकर आए हैं नए साल में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मीटअप, जिसमें हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे मिस्टर आरजे प्रतीक, लखनऊ के आरजे प्रतीक, मिस्टर प्रतीक। और उससे पहले मैं जो वॉक्सिट के सूत्रधार हैं, जो वॉक्सिट के फाउंडर हैं मिस्टर श्याम, उनका स्वागत करना चाहूंगी। वेलकम मिस्टर श्याम। और उनके साथ ही को फाउंडर वॉक्सिट के शक्ति सचदेव जी का स्वागत करना चाहूंगी और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये हमारी एक बात को स्वीकारा और ये इस मीटअप को सक्सेसफुली परमिट करने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें परमिशन दी, ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले हर बार कुछ नए लोगों के साथ, तो हम अपने आप को बेहतर कर सके। तो Mr. Shyam, I would request you to say something before we start this live meetup. Okay, wonderful. Namaskar, Shuswagatam, and welcome you all. Happy Hindi Divas, Happy New Year. I think we can keep welcoming so much. It's a wonderful day. Sunday, आज Sunday की बात, शाम की बात, and Hindi Divas की दिन पे we are meeting up. So gives me great pleasure. Thank you for to all of you for coming. And I also wanted to share couple of interesting developments that has happened last jockey meetup में कुछ share किया था मैंने, and I also wanted to share some couple of interesting things. We are very close to 25,000 downloads. Okay, so we are 24,000 downloads plus in the Play Store. अगर Play Store पे आपको 10K plus it will show, but then in a short while, in a matter of days, I think we will get to the next milestone. 50K downloads का number आएंगे. So that will be the next achievement from the company. And I wanted to keep it open. Guess कर सकते हो आप कितने countries पे Voxit app has been downloaded? Take the right guess. The closest person will get a 100 rupee coupon. Sir, am I a participant here? No, you are not part of it. ये jockeys की दिन है. So everybody else. Anybody can unmute and say a number. 30 or 40? No, only one number. तुक्का खेल सकते हैं. तुक्का खेल सकते हैं. Yes. Okay. Everyone Type the number. Please type the number वहाँ पे. आप chat box में type कर लीजिए. Keep sending in the numbers. I want to see the closest guess. Okay. All right. 1, 2, 3. Let me see who has come closest. Okay. Sati, you want to see who is the closest? No, sir, you take a call. I was not a participant. 35, 15, 41, 57. ये 5,600 का कुछ correction हो गया अभी? 5,000. Totally कितने countries है दुनिया में? 210. Approx. So, yeah. 190 something है 8 के करीब. And Yeah, like, something like that. 197, 198, something कुछ है. Correct, you are right. And like 2,000 plus islands हैं, तो कुल मिला के like बहुत सारी बन जाती है. But 198 approx countries in our Correct. world. बिल्कुल ठीक. Absolutely right. Okay. We are मतलब अपने downloads, even if it is one, that is counted as one country. ठीक है? We have downloads from 172 countries. Oh my God! Wow, it's a big deal. Okay, but even if it is, as I said, उसमें 100 countries may have one download, but then top 10 countries में अपने 100 plus downloads है. That includes Sri Lanka, Malaysia, Singapore, London, Germany, quite a few countries. So that way, I think you have a great opportunity. आपका voice is actually reaching the dunia, not just a pocket में. So you are a global, globally well known. All of your voice are reaching actually the millions. So with that,
one final note, we also run a lot of schemes. Some of the jockeys are able to do some monetization. When I say monetization, matlab, based upon the audios and the listens, people are able to get some money by the side. So which means we are all looking at the better ways of engaging listeners. So wahan pe, you can also we can also run schemes for you. You have to share your audios. People have to listen more. When more and people listen to it, which means we can bring in advertisements into the system. Agar ad aayenge, revenue will start to come in, and we are ready to share the revenues with all our jockeys. So this model has worked excellent out here. So so the same thing I want to replicate with all of you across the country, and take this as an opportunity. Don't miss it, because abhi aap follows build karenge, you will become very big when we are actually growing very fast. So good efforts are needed early stage pay for you to get more visible. So with that, once again, welcome you all, and we will of course be available to take any questions any point in time later, one-on-one also, or separately we can have a session. But thank you so much for your patronage, and once again a warm welcome and best wishes in this Naya Saal. Thank you so much. Thank you so much, sir, for introducing us with lots of new features, new things, and congratulations to all of us and to the Voxit team. We hope the team and the Voxit will reach heights. Or I would request Shakti Sachdev ji, to say a few words. Few words, I think my old friend, my brother from another mother, RJ Prateek is here. आज का VIP guest is RJ Prateek, जिसके लिए हम सब I think बहुत time से wait कर रहे थे. So Prateek, hi Prateek, over to you. Hello, hi, how are you? Hello, team Voxit. I hope, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you so much. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि Voxit is the first app जहाँ पर मैंने अपना पॉडकास्ट किया था. एंड या यूं कहूँ कि रेडियो ब्रॉडकास्टर के तौर पे तो हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे काम करा हुआ है. I have worked in All India Radio. I have worked with ETV Uttar Pradesh. I have worked with Doordarshan. Currently working with Doordarshan, and currently I am working with the Times Group channel Radio Mirchi and Mirchi Love. Both are the channel जहाँ पर हमारा शो आता है. और I work for many Hindi stations, but on internet and as a podcaster. So Voxit was the first app जहाँ पर मैंने अपना podcast शुरू किया, and it was quite amazing experience, quite like बहुत सारे लोगों तक पहुंचना. एंड सबसे अच्छी चीज ये होती थी कि जब मुझसे लोग पूछते थे कि बहुत सारे बाहर शहर के लोग जो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे, एंड दे आस्क्ड मी जनरली कि आप कहाँ पर आपको सुन सकते हैं. तो ये मेरे पास में उस वक्त क्वेश्चन नहीं होता था, क्योंकि मेरा जो शो होता था वो यूपी के ही शहरों में आता था. तो मेरे पास में उसका कोई भी जवाब नहीं होता था. बट हाँ, फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड माय शोज ऑन Voxit एंड आई हैव स्टार्टेड माय पॉडकास्ट ऑन Voxit, तो मुझे इस सवाल का जवाब भी मिलने लग गया और लोग सुनने लग गए. एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया जब आया है तो विजुअल जो कंटेंट है, because I create digital content. I have done many series और लाजवाब लखनऊ एंड थिएटर बैकग्राउंड से भी है, तो हमने काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स कर रखी हैं. तो मुझे लगता था कि विजुअल मीडियम से पे लोग ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. एंड आई थॉट कि शायद ऑडियो मीडियम जो है वो इतना ज्यादा आगे रनिंग पे मोड पे नहीं जाएंगे या वहां पे ऑडियंस नहीं होगी. बट आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि नहीं, ऑडियो पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं, बट आपका जो ऑडियो होता है, जो आपकी आवाज होती है, आपके जो थॉट्स होते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं. दैट इज वाई बहुत सारी एप्स ऐसी हैं. एंड यू वोंट बिलीव कि मैं थोड़े दिनों पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था IRS का इंडियन रेडियो सर्वे का. तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग था कि विजुअल कंटेंट से ज्यादा आने वाले 10 सालों में लोग ऑडियो कंटेंट के कंज्यूमर होंगे. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जो मतलब ऑडियो पॉडकास्टर हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं डिजिटल मीडियम के थ्रू. तो मुझे सीरियसली बहुत, एंड यहाँ पर हम कि जो हमारा कमेंट सेक्शन है जिसमें लोग लिख रहे हैं,
तो आई वांट कि मतलब आप लोग जरा मुझे बताइए कि किन किन शहरों से आप बिलोंग करते हैं हमारे भारत के, बोल करके भी बता सकते हैं। आसाम, हेलो शक्ति, हेलो प्रतीक जी, मेरा नाम है संयोगिता मिश्रा और मैं दिल्ली, ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ फिलहाल। और मैं वॉक्सिट से जुड़ी हूँ पिछले 4 महीनों से। मैं इलाहाबाद, भी कविताएं लिखती हूँ और ऑडियोज में मेरा आजकल रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, देहरादून, लिखना, और रेवा। ज्यादातर पॉडकास्टिंग की तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है। मैं अपने एक शॉर्ट इंट्रो के साथ आपसे एक सवाल भी छोड़ देना चाहती हूँ, ताकि प्लीज इससे पहले प्लीज, कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, नोएडा। कि हम हाँ, अप्रोच कैसे करें। हम इतने सारे पॉडकास्ट आजकल खुल गए हैं, ओपन हो चुके हैं, हम प्ले हम्म, स्टोर पे जाते हैं, इतनी सारी एप्स होती है। हम्म, हम कैसे उन तक पहुंचे, या लोग, हम्म, हम कैसे अपनी चीजें उन तक पहुंचाएं। मतलब हम्म, इतना भीड़ हो चुका है इस फील्ड में, हम्म, कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके। थैंक यू। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी मैं जवाब दूंगा, और इस क्वेश्चन के जवाब से पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक बार आप सबको बताऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भारत के अलग अलग ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं इस पॉडकास्ट, इस मीटिंग में, इस वर्चुअल मीट में। और देखिए कंटेंट का क्या होता है, सबसे पहले मैं अपनी कहानी आपको इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मेरी गलतियां हैं, आप हमेशा उस चीज से सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद चीजें बहुत आसान होंगी, बिकॉज आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स इन माय लाइफ। तो आपको मुझसे ये सीखने को मिलेगा कि क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले होता क्या था कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, तो मैं तो ये सोच करके आया था कि भाई देखो, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है और ढेर सारी शोहरत कमानी है, ढेर सारे लोग जाने मुझे। ये ऑनेस्टली सब में, हम आप सब अगर इस फील्ड में है तो हमारा जो थॉट है वो कहीं ना कहीं यही है। तो हुआ क्या उस वक्त कि आई बिलोंग टू अ पुरोहित फैमिली। मैं एक पुरोहित फैमिली को बिलोंग करता हूँ। माय फादर इज अ पुरोहित, और आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को पुरोहित का मतलब पता होगा। तो पुरोहित इज लाइक कि एक ऐसे नॉर्मल पंडित से थोड़ा सा अपर लेवल पे होते हैं। उनको दे नो ईच एंड एवरीथिंग, लाइक कर्मकांड जितने भी होते हैं वो सब उन्हें पता होता है। तो मैं जब छोटा था तो 8 साल की उम्र में हमने भी सीखना शुरू कर दिया था। तो हमारे भी पिताजी ने हमारा भी मतलब जनेऊ करा दिया था, और सारी चीजें, संस्कृत की पढ़ाई मैंने करना शुरू करी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों सीख रहा हूँ, लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं और लोगों के तो अपना अलग होता है, मैं संस्कृत क्यों सीख रहा हूँ। तो दैट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन इनटू माय माइंड। बट व्हाट हैपेंड कि जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया, रेडियो मिर्ची में इंटर्नशिप के लिए गया, तो मैंने अपनी सीवी पे, बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, मेरे को सिर्फ यही आता था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सीवी में मेंशन किया दैट आई हैव अ नॉलेज ऑफ यजुर्वेद। तो मेरे से रेडियो मिर्ची में जब मैं इंटर्नशिप ले गया इन 2013, तो द पर्सन हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू, ही आस्क्ड कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आती है और अदर जितने भी लोग आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनको वो चीज नहीं आती है। तो मैंने कहा यार, मैं तो बहुत ही बेवकूफ सा समझ रहा हूँ खुद को, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है। तो देन सडनली क्लिक करा कि शायद मेरी सीवी में मैंने संस्कृत लिख रखा है, एंड दैट्स द थिंग जो बहुत कम लोगों को आती होगी। तो मैंने वो चीज मेंशन करी, एंड देन दे सेड यस, दैट्स द थिंग, एंड मुझे इंटर्नशिप मिल गई। सो फ्रॉम दैट डे I have started taking that संस्कृत वाला thing as my strength. तो हम में से बहुत सारा संस्कृत का पे कमांड, हिंदी पे कमांड है। मुझे हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो शायद बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी तो बहुत ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लोग उसी में भाषा में बात करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरी तो कमजोरी, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से मेरा स्टडी बैकग्राउंड था। फिर मुझे, जब मैं नावेद भाई से मिला, आरजे नावेद, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, तो नावेद भाई से जब मिला तो आई हैव शेयर्ड दैट थिंग कि नावेद भाई, मेरा तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती और मिर्ची में सबको इंग्लिश आती है। तो नावेद ने बोला, क्या तुझसे जब तू हिंदी में बात करता है तो कोई जवाब नहीं देता है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। देन नावेद सेड कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो भाषा जिसमें तू सबसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है वही भाषा अच्छी है। जिसमें सबसे ज्यादा तरीके से ऑडियंस को गैदर कर सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो, उन पे अपनी छाप छोड़ सकते हो, वो भाषा अच्छी है। तो एक मिथ यहाँ पे ये टूटा।
तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले गो टू रीजनल। आपको पता है कि कौन सा कंटेंट अप्रोच। पहली चीज, आप 100 लोग अगर हैं तो 100 लोग अगर हमारी ऑडियंस है तो ये मान करके चलो कि आप 100 लोगों को हैप्पी नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो 100 लोग आपसे खुश हो या आप उन 100 लोगों को एंटरटेन करो। नहीं, उन 100 लोगों में 15 लोग ऐसे होंगे या 20 लोग ऐसे होंगे जो आपकी पर्सनालिटी वाले होंगे, या जैसे किसी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, ऐसे लोग पसंद होते हैं जो जाकिर खान की कॉमेडी पसंद करते हैं, किसी को कपिल शर्मा की कॉमेडी पसंद है, किसी को कैनी सेबेस्टियन की पसंद है, किसी को वरुण ग्रोवर की पसंद है। तो हर एक का जो एंटरटेनमेंट मीडियम है ऊपर वाले ने सबको अलग अलग दिया है। तो दैट डजंट मीन, आप पहली चीज खुद को पहचानिए, व्हाट्स गुड इन यू। जैसे मुझे फैक्ट्स जानना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे कोई भी ये वाली चीज नहीं होती कि पता है ऐसा हो गया, पता है वैसा हो गया। सो दैट्स इनटू माय माइंड। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है लोगों को ऐसी चीजें बताना जो उनको ना पता हो। सो आई हैव डन दैट, व्हाट द फैक्ट, एंड लिटरली व्हाट द फैक्ट बहुत लोगों को पसंद आई। एंड थैंक यू सो मच शक्ति भाई, आपने ये बात बताई, मेंशन करी यहाँ पे। एंड जैसे एक मैंने शुरू करी थी 2 इंच शायरी, तो 2 इंच शायरी एक ऐसी चीज है जो ख्यालों पे होती है, और किसी के थॉट्स को आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। बट मैंने जो शो का नाम दिया दैट वाज लाइक 2 इंच शायरी, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये चीज होनी चाहिए, आपकी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। एंड सबसे अच्छी चीज वो कि पहले तो आपको कोई भी एक भाषा, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको हिंदी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक वो भाषा जिसमें आप नॉर्मली किसी से, जैसे किसी की अवधी बहुत अच्छी होती है, किसी की खड़ी बोली बहुत अच्छी होती है, किसी की हरियाणवी बहुत अच्छी है, किसी की बंगाली बहुत अच्छी है, तो उस लैंग्वेज में ही आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक आप किसी और लैंग्वेज में सीख करके फिर उस पर कमांड पाने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके कॉम्पिटिशंस और बढ़ चुके होंगे। इसलिए ऊपर वाले ने आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल होने के लिए एक ऐसा आर्ट दिया, आप उसको आजमाइए। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी, पहला मेरा टॉपिक था कि आपको लोकल होना पड़ेगा। लोकल इन द सेंस जो आपके आसपास की चीज है आप उसको, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, यहाँ के लखनऊ जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ के डीसीपी साहब है, ट्रैफिक डीसीपी है पूर्णेंदु सिंह जी। तो पूर्णेंदु सिंह जी से वो बहुत अच्छे इंसान है, तो वो बहुत पढ़ते हैं, वो सिविल की तैयारियां वो कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे 2 टर्म बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 टर्म है, एक टर्म है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल थिंग्स, और एक है लोकलाइजेशन ऑफ ग्लोबल थिंग। तो आप पहला है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल थॉट्स या लोकल थिंग, जैसे कि छठ पूजा है। अब सपोज छठ पूजा जो है, छठ पूजा इज अ फेस्टिवल जो कि बिहार के किसी गांव का एक फेस्टिवल है, ठीक। लेकिन आज छठ पूजा जो है वो ग्लोबलाइजेशन हो गया उस चीज का। तो क्या हुआ ना कि छठ पूजा के जो रिचुअल होते हैं, छठ पूजा की जो कहानी है, छठ पूजाओं की जो मान्यता है, या छठ पूजा को मीडिया ने इस तरीके से हाईलाइट किया कि वो पूरा ग्लोबलाइज हो गया। अब सोचिए, है तो बहुत छोटी सी चीज, उसी तरीके से लोकलाइजेशन ऑफ ग्लोबल थिंग। अब जैसे क्या हो गया, जैसे अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल की बात करी जाए, क्योंकि मैं फेस्टिवल से ही बताऊं अगर आपको, जैसे गणपति उत्सव है। तो गणपति उत्सव इज अ फेस्टिवल जो कि बहुत बड़े स्केल पे होता है, बट आज आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह गणपति उत्सव हो रहा है। तो सीन क्या है ना कि आपको जो आपके पास में चीजें हैं उसको रिच जानना पड़ेगा। आप जाइए अपने अगल बगल की चीजें, आपके घर में ही कुछ इतने 75 कंटेंट पड़े होंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं, आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। आप इसको जैसे मेरे शो की एक लाइन है, मैं हर बार जैसे ही अपने शो पे ओपनिंग करता हूँ रेडियो पे, तो आई आस्क पीपल कैसे हैं। जैसे मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं सिंपली की 98.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ, कैसे हैं। अब ये कैसे हैं जो है, तो दैट इज अ थिंग जो बचपने से, जैसे मेरी आदत है कि मैं किसी से भी मिलता हूं तो पूछता हूं और भाई कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं। और मैं पूरे शो में जितनी बार बोलता हूं उतनी बार कैसे हैं बोलता हूं। तो अब सीन क्या है कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूं, जब भी कोई मुझे स्टेज पे मिलता है, या जब भी कोई मुझे कॉल करता है, या जब भी कोई सोशल मीडिया पे कमेंट करता है, तो वहां पे कैसे हैं लिखता है। तो आई फील वेरी गुड दैट कि चलो मेरा कुछ उसके अंदर भी गया है, वो चीज चाह रहा है। सो पहली चीज, आपको कंटेंट ऐसा पकड़ना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस समझिए, आप किस चीज में गुड है उस चीज को पकड़िए। सेकंड नंबर पर जो चीज मैंने आपको बोली कि कंटेंट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर तरीके के लोग हैं। अब आप ये देख, पहली चीज तो
सुनिए कि किस किस तरीके की पॉडकास्ट हो चुकी है, किस किस तरीके। अब जैसे मैंने जो 2 इंच शायरी भी करी थी, तो 2 इंच शायरी वाज नॉट ओनली थिंग कि मैंने कोई भी किताब उठाई उसमें से शायरी पढ़ी और मैंने बता दी ना। 2 इंच शायरी एक ऐसा पॉडकास्ट था जिसमें ऐसे शायरों के बारे में मैंने बताया जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, उसमें मेहनत लगती है, उसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है, उसमें आपके एपिसोड्स भी 1-2 दिन लेट हो जाते हैं। जैसे शक्ति भाई बोलते थे आज आपका एपिसोड नहीं आया, तो मेरे पास कंटेंट नहीं होता था एंड आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी इंटरनेट से उठा करके छाप दूं। नहीं, उसके लिए मैं 10 किताबें पढ़ना पसंद करता था। मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता है कि अभी मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि आने वाले 5 साल बाद जब वॉकजेट हर एक इंसान के फोन में होगा, उस वक्त मेरा शो अगर उस पर पड़ा होगा तो उस वक्त कितने लोग उसको सुन रहे होंगे। कंटेंट रिलेटेबिलिटी, क्योंकि इंटरनेट का जो कंटेंट होता है वो हमेशा पड़ा रहता है। इंटरनेट का कंटेंट कभी भी खत्म नहीं होगा, जब तक वो नेटवर्क है, जब तक वो चीजें हैं, जब तक वो ऐप है, तब तक वो कंटेंट रहेगा। तो आपका कंटेंट पहली चीज ऐसा होना चाहिए कि ये इसकी उसकी उम्र होनी चाहिए। कभी भी कोई भी कंटेंट बनाइए तो आप ये सोचिए कि उसकी उम्र कितनी है। जैसे जनरली करंट अफेयर्स जो होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि करंट अफेयर्स पे हमें कोई पॉडकास्ट बनानी चाहिए। पर्सनली आई थिंक, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सबसे ज्यादा चलते हैं आपके सोशल मीडिया पे, अखबारों में चल गए, रेडियो पे यूज हो गए, बट करंट अफेयर्स के ऊपर कोई पॉडकास्ट बना ले लोग तो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी ज्यादा लाइफ होती। क्योंकि अगर अभी बात करी जा रही है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इनके कि ये अनुष्का शर्मा इज प्रेग्नेंट, सपोज अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा, और अगर हमने एक पॉडकास्ट अभी बनाई है 3-4 मिनट की और उसको पोस्ट किया है वॉक्जेट पे, तो आने वाले 6 महीने बाद जब वो व्हेन शी विल बी डिलीवरिंग अ बेबी, जब उसका बच्चा हो जाएगा या जो भी होगा, तो उसके 6 महीने बाद आपका वो जो पॉडकास्ट चंक है वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू दैट कि अनुष्का शर्मा का और उसका बच्चा होने वाला है, हो चुका है या वो क्या कर रहा है। तो करंट अफेयर्स पे तो आई डोंट थिंक सो कि कंटेंट होना चाहिए। हाँ, कुछ ओसीज बनाने चाहिए, कुछ ओरिजिनल कंटेंट होने चाहिए। लाइक सपोज कि कुछ हम अगर हमें बनाना है तो वी कैन डू सम कंटेंट लाइक कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की 5 ऐसे फेवरेट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं जो वो डेटिंग के लिए यूज करते हैं, जहां पे वो घूमने गए अपनी शादी के बाद में उन्होंने ऐसा किया, तो वो कंटेंट ऐसा है कि वो हमेशा पड़ा रहेगा टिल अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली इज पॉपुलर। तो कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए। तीसरी चीज मैं देखिए, पहला मैंने आपको बताया कि लोकल चीजों का यूज करिए, अपने अंदाज का जिसमें आप पले बड़े उसका यूज करिए। सेकेंड नंबर पर मैंने आपको ये चीज टिप दी कि कोई भी करंट अफेयर को यूज करके मत बनाइए। थर्ड नंबर पर मैं आपको एक टिप ये दूंगा कि पढ़िए बहुत। होता क्या है कि इंटरनेट की दुनिया में व्हाट्सएप बाबा के जमाने में जो खबरें आती हैं तो हम लोगों को लगता है कि अरे यार सब चीजें चल तो रही है, हो जाएगी। ना ना ना, इफ यू आर नॉट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली, अगर आप अपने आप को सीरियस लेंगे तो आप जाहिर सी बात है आप पढ़ेंगे, और अगर आप अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे तो भाई जब आप ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो तो दूसरा आपका सुनने वाला आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्क, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गोइंग टू से। कहाँ घूम कर आए, हाँ, कहाँ मतलब गश्ती से वीडियो बना कर आए, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग कि इस चीज का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, फैक्ट्स ढूंढिए। आप देखिए आपका खुद का पर्सनल नॉलेज बड़ा अच्छा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें सुषमा स्वराज जो हमारी एक हमारे यहाँ की जो एक पॉलिटिशियन रही है जो अभी नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छा, शी इज वेरी गुड, मतलब वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करती हैं थी वो। तो उनके ऐसे लोगों के भाषणों को सुनिए जिसमें क्या होगा ना, जिसमें आपको पता लगेगा कि सबसे अच्छे पॉडकास्टर वही हैं। सीरियसली कितनी नॉलेज है उनमें। सुषमा स्वराज जी वॉज टेलिंग की जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका कितना महत्व है ना। इस तरीके से आप कुमार विश्वास को सुनिए। इसी तरीके से आप जो आजकल साउथ के एक सूर्या हैं जो काफी यंग पॉलिटिशियन है, आप उनकी स्पीच सुनिए। और मतलब जो एक बहुत, आप बच्चन साहब को सुनिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है, बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। तो सुनना शुरू करिए, प्लस एंगेजमेंट बढ़ाइए अपने शो पर। आप बार बार मतलब कोशिश करिए इफ यू कैन डू समथिंग कि वॉक्सिट पर या कहीं पर भी आकर के आपको फीडबैक दे सके वो।
ऐसी चीजें करिए। प्लस एजी कंटेंट और वल्गर कंटेंट, आई नो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो गाली बकेंगे ये तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो कोई छिछला कंटेंट बनाएंगे, दे विल मेक कंटेंट और ऑफ ऑन सेक्स या कुछ ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसमें वो गालियां होंगी, तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। सॉरी माय फ्रेंड, मे बी हो सकता है आप कुछ समय के लिए पॉपुलर हो जाएं, बट यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इसी इमेज को लेकर के आपको कंटेंट क्रिएट करना है, सो अच्छी बात है, यू डू। मतलब ऑडियंस तो राखी सावंत की भी है, ऑडियंस कटरीना कैफ की भी है, बट चॉइस इज योर्स, हाउ यू वांट टू सी कि आने वाले 5 साल बाद लोग आपको कैसे देखें। और यू नेवर नो, आर्टिस्ट एक ऐसा आर्ट एक ऐसी फील्ड है जहां का बंदा हर कुछ कर सकता है। यू कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑल्सो, यू कैन बिकम अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, यू कैन बिकम एनीथिंग, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो अपनी इमेज बिल्ड करने का सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास में ये है, तो यू कैन डू दिस। तो मेरी तरफ से तो यही है, बाकी आपके सवाल कुछ हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, वरना मेरा रेडियो ऑन रहेगा। प्रतीक जी, आपके फेवरेट शायर और एक तो चंदा शायर उनके आप अगर सुना सकें तो हम। कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से आप? शौर्य बोल रहा हूँ मैं, शौर्य बोल रहे हैं, कहाँ से? इलाहाबाद से। ओके, इलाहाबाद इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। इलाहाबाद में सिविल लाइंस है और जीरो रोड है। हाँ, तो मैं वहां पे गया हूँ। तो मेरे फेवरेट शायर जो हैं बहुत सारे हैं, किसी एक को मतलब नाम लेना किसी एक का मुझे लगता है बहुत दूसरे के साथ में नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। जो मेरे फेवरेट आजकल शायरा हैं, कॉज मैं उन्हें बहुत पढ़ रहा हूँ, अंजुम रहबर जी, आपने अगर उनका नाम सुना होगा तो अंजुम रहबर जी का अशार मैं आपको जरूर सुना सकता हूँ। शबीना अदीब मेरी बड़ी फेवरेट है, मैं उनका सुना सकता हूँ, आजकल मैं उनको भी पढ़ रहा हूँ। तो अंजुम जी का सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ कि मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितनी करीब था, और मैं उस शख्स को देखने को तरसती ही रह गई, मैं उस शख्स को देखने को तरसती ही रह गई जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था, और दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, और मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंजुम जी का लिखा हुआ है और मुझे काफी पसंद भी है। और मैं कभी भी शौर्य जब भी लखनऊ आना तो मिलना, क्योंकि मेरा घर जिधर है वहां पर बेगम अख्तर साहिबा की मजार बनी हुई है। तो बेगम अख्तर साहिबा और जिगर मुरादाबादी जो एक बहुत ही उम्दा शायर है, तो उनका भी आपस में बहुत अच्छा राब्ता रहा है। और मैं भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ, और शायरी एक ऐसी कमजोरी है कि जब मुझसे कुछ कहता है तो मैं सुनता हूँ। एक मेरा खुद का लिखा हुआ आजकल मैं लिख रहा हूँ, तो स्वागत। हाँ हाँ, तो आई होप कि ये वॉक्सिट वर्चुअल मीट मुशायरा नहीं बनेगी वर्चुअल, बट आई विल आल्सो तो कि अपनी तमीज तहजीब जुबान, अपनी तमीज तहजीब जुबान, खान पान के नाम पर जिंदा हूँ, और मुस्कुराते हुए मिला करिए जनाब, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ। वाह वाह वाह, यो वाह, Something it's literally awesome. मैं कुछ बोल सकती हूँ? और लखनऊ क्या है कि मैं नहीं हम की जुबान है लखनऊ, मैं नहीं हम की जुबान है लखनऊ, मुसलसल जो रवा वो कारवां है लखनऊ, और लोग पराए शहरों में बीमार बहुत हैं, लोग पराए शहरों में बीमार बहुत हैं, पर न जाने कितने मरीजों की दवा है लखनऊ। एक शेर जो है नवाब साहब प्रतीक लखनऊ के साहब, नवाब दिल पर जी। छा गए आप। एक शेर जो है बात है। लखनऊ को लेकर, आपने जो भी हाँ। बोला बहुत अच्छा बोला, मेरे को आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगी कि हमें वही भाषा बोलनी चाहिए जिससे हम कंफर्टेबल हो और ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने जो बिल्कुल। भी बोला बहुत अच्छा बोला। एक शेर बहुत- प्रतियोगिता अगर लखनऊ को लेकर अगर प्रतीक जी चाहें तो मैं जी, फरमाऊं, मेरा ही लिखा जी हुआ है। बिल्कुल, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 40 लोग जुड़े हैं और कुछ क्यू में भी हैं, तो वो सभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी आपके जो भी सवाल हैं, सवाल के साथ अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, उसके साथ एक सवाल करने के साथ खुद को म्यूट कर ले, ताकि सबके सवालों का जवाब वो दे सके। थैंक नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा दिल्ली से। मैं तो मतलब एक सवाल था कि शुरुआत तो पता चल जाती है हमें कि कहाँ से कंटेंट शुरू करना है, पर पता नहीं चलता कि खत्म कहाँ करना है।
जैसे शुरुआत तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मस्त बिंदास जगह से आपसे फुल टू फटाक आप बताइए कैसे हैं आप। तो जनाब हम शुरू करते हैं आज की महफिल या आज का कुछ भी, लेकिन समझ नहीं आता खत्म कहाँ से करें, लाइक खत्म किस नोड पे करें कि वो हाई नोड रहे या लो नोड रहे, वो समझ नहीं आता चाहे किसी भी कंटेंट का हो। तो देखो, एक एक चीज बताऊं ना कि कभी भी ये सोच करके करो ही नहीं कंटेंट की खत्म करने के लिए कंटेंट कर रहे हैं या शुरू करने के लिए कंटेंट कर रहे हैं ना। जब आप कभी भी किसी से बात करते हैं तो आप ये थोड़ी ना सोचते हैं कि हाई नोट पे खत्म कर दे बात या लो नोट पे बात खत्म कर दे। बी वेरी नेचुरल। अगर लगता है हाई नोट पे खत्म करना है तो हाई नोट पे खत्म करो, अगर लगता है लो नोट पे खत्म करना है लो नोट। हमेशा, अब मैं बता रहा हूं ना, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगती हैं, बट लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिसनर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो डू व्हाट यू थिंक। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शायरी पे खत्म कर दो या शेर पे खत्म कर दो, क्वेश्चन पे खत्म कर दो। अगर आपको लगता है कि यार उस चीज को खत्म आप नहीं कर पा रहे हो, तो देन से दिस कि मैं इस चीज पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उस पे क्या बोलूँ, आप बोल करके मुझे बताओ। मतलब ओपन एंडेड कर दो उसको। इम्तियाज अली खान साहब मूवी बनाते हैं तो आज तक तो मुझे लगता ही नहीं उन्होंने कोई मूवी खत्म की है। सारी मूवी कंफ्यूजन पे ही छोड़ देते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है आप वहां पे खत्म करिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रियांशु। दी मैं पूछ लूं? जी बिल्कुल। नमस्कार सर, इट्स अ ग्रेट सेशन एंड हमने आपसे आज बहुत कुछ सीखा। मैं मुस्कान हूँ और मेरा पेरेंटल होम टाउन भी लखनऊ ही है। अब जो Okay. मेरा सवाल है वो ये है दैट हाउ वी आर सपोज टू वर्क ऑन आवर वॉइस मॉड्यूलेशन। हमारी जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं या नरेशन करते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? ओके, तो दो चीजें होती है। देखिए, पहली चीज, दो बहुत अच्छा सवाल ये है और हमें ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शुरू में मेरे को भी बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आता था कि है क्या है। कि मॉड्यूलेशन जैसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, मैं जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोलने के बाद में जहां पे मैं रुक गया, अब देखिए रुक गया, खो गया, ठीक। कहने का मतलब जो इमोजीज होती हैं, आपने कभी व्हाट्सएप की इमोजीज देखी हैं, है ना? मुस्कान, आर यू लिसनिंग टू मी? हाँ जी, मैं सुन रही थी। तो जो व्हाट्सएप की इमोजीज होती हैं, आप उसको रिहर्स करना शुरू करो। अगर आप कहानी, सपोज मेरे पास में जस्ट पास में एक अखबार रखा हुआ है, ये अखबार है। इस अखबार में लिखा हुआ है कि अप्रैल से महंगी हो जाएगी अंग्रेजी शराब। अब अगर ये दिस इज अ लाइन, अप्रैल से महंगी हो जाएगी अंग्रेजी शराब। अब यू कैन, मतलब लाइक इफ यू आर गोइंग टू टेल दिस टू ऑन रेडियो, सो अब इस पे कि अप्रैल से महंगी हो जाएगी अंग्रेजी शराब। अब मतलब एक एक चीज पे एम्फेसिस करके, एक एक चीज को थोड़ा सा कहानी में अब डायलॉग्स हो रहे हैं कि उसने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक। अब आप ऐसा, यू कैन नॉट बिहेव लाइक कि उसने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा, फ्लैट नहीं होगा, ठीक है। वो मुस्कुराई और हंस के बोली कल फिर आऊंगी, ठीक। अब दिस इज अ लाइन, तो अब तो यू विल से कि वो मुस्कुराई और हंस के बोली कल फिर आऊंगी। अब मतलब यू हैव टू फील। लता जी के गाने सुनिए आप कभी। लता जी का एक गाना है, उस दिन एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था जावेद अख्तर साहब का। लता जी का एक सॉन्ग है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो इस गाने में जो लाइन है, उसकी एक लाइन है कि हुई और भी मुलायम। अब लाइन है कि हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। तो अब मुलायम में वो मुलायम अपने आप ही आ गया, हुई और भी मुलायम। मतलब वो फील, हंस के बात करिए, रो के बात करिए, गुस्से में बात करिए, यही मॉड्यूलेशन है। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। जी, मेरा नाम लीना थावानी है। मैं बिल्कुल आपके लखनऊ के करीब कानपुर की हूँ। मुझे पूछना है जॉकी के लिए जी, मैं कानपुर की हूँ। ये जो तकिया कलाम जॉकी के लिए कंपलसरी होते हैं क्या? खुश रहिए, व्यस्त रहिए, ऐसे करके स्टार्ट करना कंपलसरी है? नहीं लीना जी, ये ऐसा तो नहीं है। ओके, मुझे लगा शायद इसका भी फर्क पड़ता हो। ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसी एक अलग चीज है। लोगों का सोच है कि नहीं, आरजेज है तो ऐसे बोलते होंगे, हाँ मैं हूँ मीन्स हनी, और ये
नहीं, अब आरजे सयानी नहीं है, सयाने हो गए, तो सयाने आरजे बनिए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं, हाय हेलो नमस्ते, ये आप यकीन नहीं करोगे। अब मैं सुबह 6 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ, टेम्परेचर जो हो रहा है वो बहुत माइनस में जा रहा है और एक तरीके से बहुत लो हो रहा है, ठंडक हो रही है। जब मैं अपने ऑफिस पे पहुंचता हूँ तो मैं ऑफिस पे जाते ही मतलब हाउ कैन आई बी वेरी हैप्पी, ओ हेलो वाह 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 वाह, नहीं हो सकता ना। मैं भी एक आम इंसान हूँ, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाओगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं ये फेक साउंड कर रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे खांसी आ रही होती है तो मैं कहता हूँ कि मुझे खांसी आ रही है, लाइव शो पे हो जाता है, मतलब तो लोग और कनेक्ट हो। जब मैं रेडियो पे जाते हैं सबसे पहले सुबह सुबह बोलूंगा कि यार आज मेरी तबियत नहीं सही है, तो यू वोंट बिलीव लोग इतना कनेक्ट करते हैं कि वो आपको दवाइयों के नाम व्हाट्सएप पे भेजने लगते हैं कि आप ये दवाई खा लो। सो दिस इज योर विनिंग, दिस इज योर जीत। तो नहीं लीना जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे लोग आप जो हैं, इफ यू आर अ मदर ऑफ अ सन जो आपके बगल में बैठा हुआ है, अगर आप इसकी मम्मी है एंड इफ यू वांट टू मेक अ शो की मम्मी का शो, दैट द मम्मी आरजे, ठीक है। अब जस्ट गो ऑन दैट मम्मी आरजे की मम्मी ने टिप्स दिया, मम्मी विल टॉक ऑन जाड़े पे क्या कर सकते हैं, मम्मी विल टॉक ऑन सब्जियां कैसे, मम्मी विल टॉक ऑन मेकअप, मम्मी विल टॉक ऑन दिस, द मम्मी शो। यू कैन स्टार्ट दैट मम्मी का पॉडकास्ट, या मम्मी मतलब वट एवर यू वांट टू स्टार्ट। ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो दादी माँ के नुस्खे वाला स्टाइल। ना, डोंट गो ऑन दादी माँ, जस्ट बी अ मम्मी, द मम्मी शो, ठीक है, द मम्मी का पॉडकास्ट, कुछ ऐसा है ना। और जो आप हैं, आप देखिएगा इतनी जल्दी वो पॉपुलर होगा, क्योंकि आप उस चीज में 100% कॉन्फिडेंट होंगी। एंड आई एम लीना जी, आई एम लुकिंग फॉर योर शो, मुझे चाहिए अगले हफ्ते तक आपका एक पॉडकास्ट। ये एक्चुअली मैंने साइकोलॉजी को लेके बच्चों के लिए स्टार्ट की है सीरीज, कि एक बच्चों के डिप्रेशन के लिए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता था कि इन पॉइंट्स पर भी मैं फोकस करूं, तो मैंने एक दो दिए हैं इसके लिए। ग्रेट, कि बच्चों को मोबाइल न दें, समय दें। एक मेरा है इस पे व्हाट्सएप पे, कि बच्चों को समय दें, मोबाइल न दें। मैं जरूर सुनूंगा, मैंने लिखा था वो, मैं जरूर सुनूंगा इसको। थैंक यू सो मच। मैं कहानी लिखती हूँ, मैं पता है कैसे स्टार्ट करती हूँ प्रतीक जी। मैं हूँ हीरल कवलानी, लाई हूँ एक और नई कहानी, तो कवलानी क्राइम हो जाती है कहानी। तो ये मैंने मतलब अपना तुकबंदी बना ली है। बहुत नहीं, वही चीज है कि मतलब जैसे जिस चीज में आप कंफर्टेबल, वो इसलिए कनेक्ट होते हैं। देखिए अब हर जगह पे, आप जैसे इफ आई एम डूइंग शो ऑन रेडियो, तो मुझे मालूम है कि मेरा शो सिर्फ लखनऊ में सुनाई दे रहा है, तो देयर माई फील इज लाइक कि आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली, देयर आई टॉक लाइक दिस, कि मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ। बट व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर सोशल मीडिया, देन आई नो कि मेरा घर जो है वो बाहर के लोग देख रहे हैं जी। तो मैं वहां पे उस तरीके से बिहेव करता हूँ कि नहीं, मैं लखनऊ का हूँ और बाहर वालों से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो और हाँ प्लीज। और किस तरह से कनेक्ट बिठा सकते हैं ऑडियंस के साथ? जैसे ये तो हो गया एक तरीका, और हम किस किस तरह से ऑडियंस को से कनेक्ट अच्छा बिठा सकते हैं? आप ऑडियंस से कनेक्ट के लिए आप एक काम ये करिए, आप अभी कहानियां किसकी पढ़ती हैं? मैं बच्चों की भी पढ़ती हूँ, बड़ों के लिए भी पढ़ती हूँ। नहीं, वो कहानी कहाँ से, नहीं मतलब वो कहानी होती कहाँ से, कहाँ कंटेंट कहाँ से? पंचतंत्र की भी होती है, सीख होती है, मॉरल टीचिंग भी होती है, क्योंकि विजडम है। नाउ स्टार्ट मेकिंग अ सीरीज ऑन व्हाट्सएप की कहानी। अच्छा, है ना। तो अब जैसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। सो जस्ट अगर छोटे छोटे फॉरवर्ड्स हैं तो आप कहिए कि भाई ये छोटे छोटे फॉरवर्ड्स मेरे पास आए, और नाम लेना शुरू करिए उसमें कि ये मुझे यहाँ से इसने व्हाट्सएप भेजा, है ना, ये मुझे मेरे किटी पार्टी के ग्रुप में व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था। सो दैट मतलब आप जितना ज्यादा ओपन होंगी लोगों से, पीपल वांट्स टू नो अबाउट योर पर्सनल थिंग्स, दे वांट्स टू नो कि लाइक कि दे वांट टू नो कि हिरल जो है वो कहाँ से कहानियां लाती हैं। सो और कभी कभी इनवाइट करिए कि अगर आपके मेरी ये लाइन है, आप इस पे कहानी जोड़िए, तो इस तरीके से यू कैन डू। और जैसे वीडियोस बनाने होते हैं मुझे वॉक्सिट के लिए ही, तो मैं मतलब और कैसे कैसे प्रमोट कर सकती हूँ, उसके लिए आप क्या आइडिया देंगे? मतलब किस तरीके की वीडियो? हर बार मुझे एक नई तरीके से अपनी कोई चीज प्रस्तुत करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल वॉक्सिट ऐप को ही मुझे पेश करना है, मैं हर बार कुछ नया चाहती हूँ, तो इस ऐप को सुनिए, आपको कहानियां, गीत का ये कविताएं बहुत मजेदार लगेगी। तो हर बार मैं सेम चीज नहीं बोलना चाहूंगी, ना लेकिन मुझे वॉक्सिट को प्रमोट करना है, उसके लिए आइडिया दीजिए। सुनिए, होता क्या है कि हर बार पहली चीज तो ये कि आपको एक पर्सनालिटी बनना पड़ेगा।
कि जी सपोज इफ यू आर डूइंग अ वीडियो, जैसे मैं वीडियो करता हूँ लाजवाब लखनऊ, so when I do लाजवाब लखनऊ, तो that in that video I wear a कुर्ता, वो मेरा पठानी कुर्ता होता है जो मेरा लखनऊ का गेटअप है। सो आई वेयर दैट पठानी कुर्ता सो दैट पीपल कैन कनेक्ट, अच्छा ये वही लड़का है कि वो पठानी। अब क्या होता है कि अगर मैं किसी वीडियो में बिना कुर्ते के आता हूँ तो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपका वो कुर्ता कहाँ गया, ठीक है, या फ्रॉम वेयर यू गेट दैट कुर्ता। सो यू हैव टू, इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन वीडियो, तो यू हैव टू क्रिएट दैट ओन पर्सनैलिटी जिसको लोग इन्फ्लुएंस हो सके। प्लस दूसरी चीज ये कि आप उसी पर्सनैलिटी को जिए। ऐसा नहीं करिए कि कभी आप कहानी कर रही हैं, कभी आप पोएम पढ़ रही हैं, कभी आप कॉमेडी पढ़ रही हैं, कभी आप, अगर इफ यू आर इनटू इंटेंस कहानियां, इफ यू आर इनटू हॉरर कहानियां, इफ यू आर इनटू दैट कॉमेडी कहानियां, तो सिर्फ वही पढ़िए। क्या होता है कि आप, हाँ, जब आप 15 एपिसोड सेम चीज पे कर लीजिए, देन उसके बाद में फिर आप अगले पे स्विच करिए, सो दैट आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। लोगों को मालूम होगा कि हाँ, अगर ललिता पवार आ रही है तो वो एक ऐसी माँ होगी जो खड़ूस होगी, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। अगर निरूपा रॉय आ रही है तो जाहिर सी बात है वो बहुत दयालु माँ होगी, उसके बच्चे खो जाएंगे, है ना। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपको अपना एक पर्सोना ऐसा बनाना पड़ेगा, फॉर सिर्फ उस पर्सोना की वजह से लोग आपके पास में आए। इफ यू आर मतलब इफ यू वेयर साड़ी, जस्ट सपोज इफ यू वेयर साड़ी, तो जस्ट बी अ साड़ी, मतलब साड़ी पहनिए और सिर्फ साड़ियां ही पहनिए। ऐसा नहीं करिए कि कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ कर लिया। ना ना ना, आप देखिएगा आपकी कहानियों ज्यादा आपकी साड़ियों के लोग फैन हो जाएंगे, या आपको इसी चीज से लोग याद रखेंगे कि अच्छा वही जो बड़ी बिंदी लगा के आती। आपने कभी मालिनी अवस्थी जी को देखा है? तो मालिनी अवस्थी जी इज माई गुरु, शी इज माई गुरु। तो मालिनी मैम जो है वो हमेशा वो जब भी स्टेज पे जाती है तो वो पूरा वो गवनई वाले अंदाज में ही कपड़ा पहने होती है, तो वो उनका पहचान है। मतलब शी नेवर डू कि कभी सलवार सूट पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहनना, वो एक सा ही पहन करके रहती है। तो इफ यू आर डूइंग अ वीडियो कंटेंट, तो वीडियो कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है एंड ऑडियो कंटेंट पूरा डिफरेंट है। नहीं, मैं नए अंदाज जान रही थी, बट ठीक है कि कोई चीज को हम अलग अलग अंदाज में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये तो मेरा और अपीयरेंस। सर आपने जो भी कहा, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पर आपने जो अभी कहा कि हर बंदे के साथ, हर शख्स के साथ उसकी एक इमेज होती है, पर अगर हम इस तरीके से काम करते रहे तो एक स्टीरियोटाइप नहीं बन जाएगा हमें लेकर? वर्सेटाइल द गर्ल विद द बिंदी, छुप द जाएगी। बॉन्ड, द कुर्ता। ना ना ना, सॉरी माय डियर, बट यू आर नॉट एन एक्टर. If you are going to be an actor, then it's a stereo thing. But if you are a broadcaster, तो जाहिर सी बात है, you cannot be नेहा कक्कड़ every time, you cannot be लता मंगेशकर every time, you cannot be like, आप एक से कभी भी ऑब्जर्व करना, जो सिंगर होते हैं, जो ऑडियो वाले होते हैं, जिनका अंदाज जाना जाता है। एक्टर तो एक अलग हो गया, एक्टर तो वो हो गया ना कि जिसको अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी रखनी है। बट इफ यू आर इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी पे। कुमार विश्वास इतना अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो आज भी वही गाते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या आप उस चीज से हो गए हो? नहीं हो गए हो, है ना। उषा उत्तुप जो है, उषा उत्तुप की आवाज वही है, मोटी आवाज है, एंड शी सिंग्स ऑलवेज हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। अब अगर उसको वो पतला करके गाएंगी तो वो उषा उत्तुप उतनी भी नहीं हो पाएंगी जितनी अभी पॉपुलर है। आपकी जो पर्सनालिटी ऊपर वाले ने दिया, आप उसमें हो, आप उसको पॉलिश करो, बट आप उसको चेंज मत करो। स्टीरियो कुछ भी नहीं होता है। स्टीरियो का मतलब आप अपने आप से उब जाओगी, ये कहना चाह रहे हो? हम कहाँ उगते हैं, बट ऑडियंस ही करती है जो करती है, हमें तो हम अच्छे लगते हैं। 30 हो गए, 60 हो गए, उसके बाद स्विच कर लें। जैसे कहानियां काफी हो गई तो उसके बाद आप पोइट्री में जाएं, ये था ना आपका मतलब? हाँ, ये मतलब है कि मतलब आप, मुझे भी लगता है यार, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हफ्ते भर में सेम शो करता हूँ, मंडे से फ्राइडे में एक ही शो करता हूँ, एक ही तरह से शो करता हूँ, बट सैटरडे को मैं ओपन कर देता हूँ कि भाई लखनऊ वाले मेरे शो का हिस्सा बनेंगे। Good evening to everyone. Can I introduce? Yeah, please. Yes. First of all, a very warm and a pleasant good evening to everyone present over here. And Prateek sir, I always listen to your shows, and I'm feeling very glad to hear you all here. And myself, Thank you. Myself Arpita.
Arpita Khare from Gorakhpur, and I'm pursuing my BA honors from SRMU, Lucknow. And as far as my skills are concerned, I would like to say that I'm an orator, and also I can say an anchor. But I want to know one thing, that is that how should I flourish all my contents, because some of the times I feel like null and void. Like I don't know how to start with some of the contents, like on various issues. So Like can you please suggest me? various issues Like various issues, the issues of today only, means the current topic. So I don't know, I don't know how to cope up with them and how to write on them. So can you please tell me, and how to सबसे bring? पहले या I'll tell you. सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे अंदर ये आता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम शुरू कहाँ से करें, तो इसके मेरे साथ में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ में जो हमेशा से रहा है कि जब हम कंटेंट पे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, सपोज इफ आई एम गोइंग टू राइट अ थिंग ऑन सपोज चाइल्ड साइकोलॉजी, अभी लीना जी जो बताया उन्होंने कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक। अगर मैं सपोज कि मुझे नहीं मालूम है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है या मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूं बच्चों को, इफ आई एम नॉट श्योर, तो मैं अनकॉन्फिडेंट रहूंगा, और जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा अपनी चीज पे, तो मुझे समझ ही में नहीं आएगा कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज पे बात आप करना चाह रहे हो, तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेल रेड अबाउट इट, बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ा हुआ है आपने, और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको बिल्कुल अपने अंदर जज्ब करा हुआ है। फिर उसके बाद में जो सबसे पहला थॉट आपका आए, ठीक, उसको भी लिखिए, और उस थॉट के अलावा भी आप सोचिए कि अगर इससे ना करूं तो इससे कैसे करूं, सेकंड थॉट क्या होता है। अब उन दो थॉट को कंपेयर करिए, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंस हो आप उसमें आगे निकल जाइए। Thank you so much, sir, for this view, and I'll try to work out on it. आई होप। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, बिकॉज सीन क्या है कि आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों का सवाल अभी यहाँ पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई एम टेलिंग यू कि आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़िए। मैं मिर्ची प्रतीक मेरा फेसबुक हैंडल है, और आरजे प्रतीक लखनवी इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप वॉक्सिट का रेफरेंस देते हुए आप मेरे को एक बार अपना कोई भी कंटेंट आप बनाइए, आप मुझे भेजिए वहां पर। मैं बहुत आई जस्ट लव टू कंज्यूम कंटेंट ऑफ डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो आप मुझे प्लीज भेजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए। तो सो दैट अगर मुझे लगता है कि नहीं, आप लोगों में से कोई भी एक ऐसा इंसान जो मुझे लगता है कि नहीं उसकी और हेल्प हो सकती है या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच सर। हम आपको थैंक यू अपने सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर करने के लिए। और इसके अलावा हम आपको और कहाँ सुन सकते हैं, एक बार बता दीजिए। उसके अलावा आप हाँ, तो आप उसके अलावा आप मुझे वॉक्सिट पे तो सुनते ही हैं। आप मुझे रेडियो में, अगर आप लखनऊ में हैं तो आप मुझे सुन सकते हैं। लखनऊ में मेरा शो आता है सुबह 7 से 12, और अगर आप झांसी में हैं तो लखनऊ वाला शो मेरा कानपुर तक भी ब्रॉडकास्ट होता है। अगर आप झांसी में हैं तो आप झांसी में भी मेरा शो सुन सकते हैं। झांसी में मेरा इवनिंग शो आता है। एंड इफ यू आर इनटू यूएस, तो अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो न्यूयॉर्क में मेरा शो आता है रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी पे भी। तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड अटलांटा, तो ये 3 शहरों में मेरा 2 से 5 शो आता है। मेरे शो का नाम है फिल्मी मिर्ची यूएस, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। और आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, कि मैं कुछ नया भी करूं। अब शक्ति भैया मेरे को जब बताएंगे तो मैं नया पॉडकास्ट शुरू करूंगा वॉक्सिट पे, तो मैं आप लोगों के साथ उसमें भी होऊंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को लेना, प्रतीक भाई इज अवेलेबल लास्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आई लास्ट दो क्वेश्चन सर मैं भी लूंगा। अच्छा नीरज जी आप पहले बोलिए, उसके बाद फिर मैं रखता हूँ अपने से। हेलो प्रतीक सर, मेरा नाम नीरज है। मैं YouTube पर मेरा नीरज का रेडियो करके चैनल भी है, और मैं वॉक्सिट पे भी बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ना डिक्शन की। मैं कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है मेरे में है थोड़ा बहुत। आपका डिक्शन भी डिक्शन हो गया है। हाँ, वो भी बहुत खराब है।
लेकिन उसके अलावा मैं बोलता चला जाता हूँ। मैं बहुत ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब नहीं सुधरा तो फिर मैंने उसको अपना ही स्टाइल बना लिया। तो आप थोड़ा कहाँ सा के हैं ये बताइए, आप कहाँ के हैं? मैं सर सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर गोरखपुर के पास है ये मेरा गाँव। अभी गोरखपुर मैं के, दिल्ली में हाँ, तो रहता हूँ। अबे ये गोरखपुर के पास के हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, सरकार तुम्हारी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, आप बताइए। ओके, तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, उस जगह का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, बड़े बड़े ऑडिटर्स होते हैं, जो उनका लोकल जिस जगह का वो रहने वाले हैं। जैसे अभी हमारे करंट में जो लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, डीके ठाकुर, तो ही बिलोंग्स टू आपका ये बिहार। तो बिहार का कोई मुझे जगह नहीं याद आ रहा है, वो वहां के रहने वाले हैं। तो वो उनका वो राकोड़ा बोलते हैं। तो जैसे वो अभी नया हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहे थे, वो हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, वो राकोड़ा निकलता है उनके मुंह। तो वो दैट इज अ लोकल लैंग्वेज का, कि वो हमेशा से वहां पे रहे, वो उस जगह का उनका है। आप क्या उस, अब सबसे बड़ा वरदान साबित ये हो सकता है, क्या आप अपने लोकल डिक्शन को लेकर के आप कोई कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। सपोज इफ यू आर अ गोरखपुरिया बंदा और तुम्हें जाहिर सी बात है आपको भोजपुरी आती ही होगी। जी आती है भोजपुरी। अगर भोजपुरी आती, क्या आप भोजपुरी में जो फिल्म सीरीज आ रही हैं, जो वेब सीरीज आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीजें, क्या आप भोजपुरी में कोई कैरेक्टर प्ले कर सकते हो उसको लेकर के? सपोज आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज है। नीरज। आपका नाम नीरज है। कुछ कोई भी मतलब ऐसा गुड्डू भैया या समथिंग, कोई ऐसा जो वहां के ऐसे नहीं होते, जो गोरखपुर साइड चलता है, क्या आप ऐसा कैरेक्टर लेकर के कुछ एक ऐसा बना सकते हो कि सपोज कि कोई भी एक कैरेक्टर जिसका हाँ, आप करते हो ऐसा कुछ? जी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। ऐसे सेंटर पार्क है यहाँ पे दिल्ली में, सीपी में। तो हम वहाँ पे जाया करते थे, जब हम यूट्यूब का वीडियो जब शूट करने जाया करते थे, तो वहाँ पे अपनी भाषा में, अपनी गांव की भाषा में दोस्तों के साथ बैठे और गांव की भाषा में मतलब काइंड ऑफ रोस्टिंग कर रहे हैं। अभी वो, हाँ, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन अभी सीन क्या है ना कि अभी रोस्टिंग करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है। और रोस्टिंग यार देखो क्या होता है ना कि रोस्टिंग में कैरी मिनाटी अभी बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अभी कैरी मिनाटी वो शांत है, और कैरी मिनाटी आपको पता है कौन है, बट क्या आपके पापा को पता है कौन है कैरी मिनाटी? नहीं पापा नहीं है। नहीं पता ना, नहीं पता ना, तो हाँ मतलब आप लोगों को पता है। हाँ, we all knew, our generation knows, but if I'll ask my father कि पापा आपको कैरी मिनाटी पता है, बट पापा कहेंगे ये कौन सी, ये किस चीज की बात कर रहे हो, क्या ये कोई मार्केट में नई शराब आई है या व्हाट इज दिस कैरी मिनाटी, ठीक है। सो कहने का मतलब ये, हाँ, तो वही चीज है, ये भी मेरे पापा को नहीं मालूम होगा कि क्या। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर इफ आई आस्क माय फादर कि पापा डू यू नो कपिल शर्मा, तो माय फादर विल नो अबाउट कपिल शर्मा, ठीक है। तो नीरज, व्हाट आई एम सेइंग कि आप अपना लोकल जो एक्सेंट है आपका, जो आपका लोकल जो फ्लेवर है वो बहुत रिच है। मुझे लगता है कि जिस फ्लेवर में आप बोल सकते हो, हम में से बहुत रेयर लोग वैसे बोल पाएंगे। तो उस चीज को कैच कराने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं जो है, जो दिया है ऊपर वाले ने, वो बहुत है, बस उसको लेकर के आओ, उसको ही मेकअप करके सामने लाके रख देना है। जी कोशिश करता रहता हूँ। अभी मेरे बहुत सारे वीडियोस फेसबुक पे है सर, मैं आपको भेजूंगा शाम को, आप प्लीज देखिएगा। और एंड आई वांट कि आप ऑडियो में कुछ ऐसा करके पोस्ट करो, क्योंकि उससे क्या फायदा होगा कि अभी तक जैसे सपोज बउआ एक कैरेक्टर है रौनक का, ठीक है। अब बउआ इज वेरी फेमस ड्यू टू हिज एक्सेंट, एंड एवरीबडी नोज कि जो बउआ बनाता है वो रौनक, वो पूरा फेक है, वो पूरा स्टेज है। क्योंकि अगर किसी को भी फोन आए कि अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ, तो वो लोगों को मालूम होगा यार कि बउआ इस तरीके से कोई नहीं हो सकता। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो एक्सेंट है, आप उस पर ही कोई कैरेक्टर बनाओ, समथिंग गोरखिया डॉन या समथिंग व्हाटएवर, इस तरीके गोरखपुरी करके, है ना। जैसे एक बहुत बड़े शायर है ना, फिराक गोरखपुरी। जी क्या आप कोई कैरेक्टर बना सकते हो बदमाश गोरखपुरी? जी और वो बदमाश नहीं होगा, बदमाश होगा, बदमाश गोरखपुरी। जी समझ पा रहा हूँ। शाह और शाह में बहुत सिखा दिया जिंदगी में। नहीं, हाँ, तो बस जो अभी है उसको लेकर के ही आगे बनाओ, क्योंकि सही नहीं होगा अब ये। जी क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए होगी, जितना ऐसा नहीं कि नहीं होगा, स्पीच थेरेपीज वगैरह हैं सब, बट उसमें बहुत टाइम जाएगा, उतनी देर में कुछ और कर सकते हैं आप। जी ठीक है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके हाय प्रतीक भैया। शौर्य कह रहे हैं फिराक का नाम ना खराब करो यार, हमारे यूनिवर्सिटी से। तो अब आप कुछ अच्छा करिए फिराक साहब के नाम पे। हाय प्रतीक भैया, मैं अलीम, मेरा नाम अलीम भारती है और मैं हाय घर अलीम। को तोड़ता और जोड़ता हूँ, मतलब डिजाइनर हूँ, कहने का मतलब ये था। और जनरली मेरा मतलब जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन मेरा पालन पोषण असम में हुआ है। 17 साल वहाँ पे बिताने के बाद मैं अभी मुंबई में। असम में? जी, वेरी नाइस यार। तो कभी चाय पत्ती भिजवाना मेरे लिए वहां से। हाँ जरूर जरूर बिल्कुल। क्या है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ही रह जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए मैंने बहुत सारी चीजों को वहां से मुंबई के थ्रू कनेक्ट करते हुए दिल्ली और केरला तक पहुंचाया है। तो मुझे प्रॉब्लम क्या आता है कि जो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी स्टोरी टेलिंग सही है, लाइक मैं एक ऑथर भी हूँ और इंटरनेशनली अभी पब्लिश्ड हुआ हूँ पिछले साल ही। और अच्छा मतलब लोगों ने मेरे स्टोरी पढ़ा बिकॉज वो पहाड़ों के बारे में, लाइक ऐसा नहीं है कि वो एक सीमित हो गया, अगर लैंड है तो वहां के लोग कैसे हैं, अगर समुद्र किनारे है तो वो कैसा है, क्योंकि मैंने पहाड़ से लेकर के समुद्र किनारे तक का सफर देखा हुआ, तो उसके बारे में मैंने लिखा था। लेकिन मैंने एक चीज क्या नोटिस की, जो कि मुझे आपसे मतलब ये सवाल मैं अभी रख रहा हूँ कि सब लोग तालमेल खोजते रहते हैं हमेशा, कि जैसे आपका कोई चीज किसी से लिंक हो, और अगर जैसे मैं पोएट्री कर रहा हूँ तो वो राइमिंग ही होनी चाहिए, जो कि कभी कभी जरूरत नहीं भी होती है, अगर उसमें कोई मीनिंग होती है या फिर कुछ उसकी प्रॉपर मतलब उसका बोलचाल है। तो क्या ये जरूरी है, अगर आप एज ए ऑडिटर या फिर एज ए स्पीकर अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और ऐसे कोई भी स्टोरी टेलिंग रख रहा हूँ, तो क्या मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी अगर उस तालमेल को भी बैठाने के लिए, या फिर मैं बिना स्क्रिप्ट के भी, अगर मेरे पास खाली कंटेंट है उसको लेकर के मैं बात रख सकता हूँ क्या? अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू, इससे पहले मैं जवाब दूं, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट क्या है ये बताइए मुझे। स्क्रिप्ट जैसे कि मैं कोई कविता लिख रहा हूँ, लाइक मुझे ऑन द स्पॉट किसी ने शब्द दिए और मैं उसे बना के उसके बारे में स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि आपको इस रिलेटेड स्टोरी चाहिए, और मैं उससे रिलेटेड मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। लेकिन कुछ होते पहले से ही तैयार करके आ रहा हूँ, दैट इज और कंटेंट क्या है? और कंटेंट क्या है? कंटेंट आपके पास की मतलब आपके पास नॉलेज है उस चीज से रिलेटेड, तभी आप वो शब्द दे रहे हो, तो फिर वो ना तो फिर स्क्रिप्ट और कंटेंट दोनों एक ही चीज है। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट एक लिखा फॉर्म है। अब सीन क्या है कि सपोज मैं जब नया आरजे बना था, तो उस वक्त मैं क्या करता था, वर्ड टू वर्ड लिख करके जाता था। जैसे मुझे बोलना है कि उसने ऐसा कह दिया, फिर ये हो गया, फिर वो, मैं एक एक शब्द मैं लिख करके लेके जाता था। बट नाउ आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 6 years, now I don't write script but I write pointers. सपोज कि अभी कोरोना की वैक्सीन वाला एक सीन चल रहा है, ठीक है? अभी कुछ 16 तारीख से शायद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा भारत में, ठीक? तो अब नाउ आई विल राइट ओनली 16 तारीख से वैक्सीनेशन का 16 जैन, वैक्सीन का नाम कोविशील्ड, इंडियन गवर्नमेंट या किसी डिपार्टमेंट में या किसी ने कुछ बोला है, मैं सिर्फ ये पॉइंटर्स लिखूंगा और धड़ाधड़ मैं एक्सटेम्पोर पे बोल जाऊंगा, ठीक है? तो स्क्रिप्ट क्या और कंटेंट, वो जो आप बोल रहे हो कि वो कंटेंट होता है, वो एक्सटेम्पोर होता है, वो हर जगह काम नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको लगता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अरे तो हम ऐसे यूं बिल्कुल उड़ा देंगे धर के, बट जब आप स्टेज पे जाते हो और देखते हो नीचे 5000 लोग हैं, तो आप ढीले हो जाते हो थोड़े से, और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि स्क्रिप्ट होती तब भी नहीं याद होता है। तो स्क्रिप्ट जरूर लिखनी चाहिए, और दैट इज, अरे यार हर चीज की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? तुम्हारी लाइफ को भी ऊपर वाले ने कैसे ड्राइव करना है, ऊपर वाले ने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, अरे हर चीज को नेचर से जोड़ो, ऊपर वाले ने आपकी स्क्रिप्ट लिख रखी है, ठीक है? और मतलब ऐसे कुछ भी नहीं जा सकता ना, ऊपर वाले ने ऐसा थोड़ा नहीं किया, लाओ नीचे भेज दो, देखते हैं साला क्या करता है, ऐसा नहीं है ना। हर चीज की एक स्क्रिप्ट है, तो वो है। और अभी तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब मैंने तो देखा है यार, मैं ऊपर वाले की दया से मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला है। नावेद भाई के साथ में मैंने काफी वक्त बिताया। लखनऊ की एक बहुत मशहूर आरजे थी वीरा, तो मैंने वीरा के साथ में उनको असिस्ट किया काफी समय तक। तो मैंने हमेशा देखा कि उनकी स्क्रिप्ट रखी हुई है। अभी देखो क्या है कि अभी रिसेंटली ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ है, एंड उसका सिलेक्शन हुआ, तो मेरी ऑल इंडिया रेडियो के जमाने की कम से कम 15-20 डायरिया रखी हुई है जिसमें सिर्फ स्क्रिप्ट है,
सो उससे वो पढ़ रही है, और मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं कितनी बेवकूफियां लिखता था, क्योंकि अभी मुझे जो मैं वो होता है ना, डे बाय डे आप ग्रो करते जाते हो, तो बिल्कुल स्क्रिप्ट आपको ये बताती है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना आपकी ग्रो लास्ट, कर रहे हैं, हाँ हाँ इम्प्रूवमेंट कितना है। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है यार, ये काम है यार आपका, जितना अच्छे से मिठाई बनाओगे उतनी ज्यादा टेस्टी होगी, उतनी ज्यादा बिकेगी। देखो अगर ये सोचो कि जो बेचने वाला है, जो बेचते हैं दुकानदार, तो वे सोच ले कि अरे खाना तो केवल चीनी है ना, तो चीनी धर दो, या वो सोच ले मीठा तो गुड़ से भी हो सकता है, या वो सोच ले कि ये चांदी की उसमें बरक लगाने की क्या जरूरत है, बरक का कोई टेस्ट थोड़ी ना आता है, बट दैट गिव्स, मतलब दैट बरक गिव्स एनहेंसमेंट टू द डिश। तो Hello. हाँ जी, हेलो। Yeah. Hi everyone. This is Helene. Um, I have a question, but before that, I just want to let everyone know that this has been such a great session, and I am learning so much. कुछ ऐसे questions होते हैं जो शायद मेरे mind में नहीं आए, and I still got answers to those questions. I'll keep them in mind and probably use them in my content in my work. Sure. Taking the conversation ahead, that Alan asked the question about how to create a content and everything. I want to know that when it is audio, that you have the script or you have the pointers, and you'd be able to frame your content and speak confidently because you don't have to face the audience, right? But there are chances when you become popular because of your audio content, and you have to face the audience, right? Live. This is where you struggle with if you've made notes or not, and if you can actually remember everything and speak. So I need pointers on that because I always end up forgetting something or not, and I mess up with my rate of speech. I am usually somebody who whenever I narrate in if it is Hindi, my rate of speech is relatively slower than my English. लेकिन जहाँ मैं भूली, I would take an abrupt pause and then I'll speed up. So the audience would get to know that, okay, this is where she's made a mistake. How to cover that and how to ensure that, you remember your points. How to remember the points. Any tips on that? Okay. So, very, very, very relatable question. क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा होता है when I go on stage, कभी कभी तो ऐसा होता है, you won't believe कि इतना बड़ा, मतलब ऐसी चीजें हो जाती, इतने ब्लंडर हो जाते हैं. Once I was hosting governor of UP and I said president of UP. I said है president of UP how? और सोचो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है. 26th of January को you are hosting an event and you governor of UP की जगह, क्योंकि वो इतना अंदर से डर लग रहा होता है, इतना ज्यादा नर्वसनेस हो रही होती है, इतना अजीब लग रहा होता है. एंड आई सेड प्रेसिडेंट ऑफ यूपी एंड यू वोंट बिलीव, आपको पता है इस चीज को भी आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से, तो मेरे मुंह से जब ये चीज निकल गया, देन आई सेड इट वाज अ वेरी फॉर्मल इवेंट, देन आई सेड फॉर अस यूपी इज आवर कंट्री एंड आवर प्रेसिडेंट इज आवर गवर्नर. ठीक है, सो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट. कॉज आपको मालूम है आप स्टेज पर हो, माइक आपके पास में और किसी के पास माइक नहीं, वो अगर गाली भी दे रहे होगे ना तो आप तक पहुंचेगी नहीं, या वो बाहर तक नहीं जाएगी, हो सकता है. और फिर उसके बाद में कुछ ऐसा अच्छा या कुछ बेहतरीन उसको कवर करने के लिए मलहम पट्टी कुछ ऐसा कर दो कि फिर पेमेंट ना रुके आपकी. सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो ये होती है, और बढ़िया तरीके से सब हो जाए. तो होता क्या है कि देखो ये इट हैपेंस, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आ जाता है, क्योंकि सडनली जब आपको आदत नहीं होती है बहुत सारे लोगों को एक साथ फेस करने की, तो स्टार्ट डूइंग, छोटी सी प्रैक्टिस करना शुरू करिए कि आप अपने घर में अपने कंटेंट को शेयर करना शुरू करिए. आप अपने मतलब दोस्तों के बीच में बोलना शुरू करिए. एक दिन ऑडियंस 2 होगी, फिर 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर आप हर महफिल की जान. ऐसा हो गया जब आपके साथ में कॉन्फिडेंस, तो फिर आप मोदी जी भी आ जाएंगे, आप तब भी अच्छे से बात कर लोगे. वेरी गुड. एनी अनदर क्वेश्चन? Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Lynn. And I want you all, everyone, to connect on my social media, like RJ Pratik Lakhnavi and Instagram handle है Mirchi Pratik, so that मैं आप लोग की वहाँ पे और भी ज्यादा मदद करूँ. और मैं शक्ति भैया से भी बोलता हूँ कि समय समय पर ऐसी मीट कराते रहिए, so that आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो और भी कुछ बहुत अच्छा सीख सकें. Thank you, Pratik bhai, so much.
आई थिंक बहुत लंबा सेशन हो गया, आपका टाइम ज्यादा ले लिया हम लोग ने। ना कोई मसला नहीं है, बट आई एंजॉयड अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑल द वॉक्सजेट टीम जो इसके पीछे बहुत कड़ी मशक्कत से काम कर रही है। एंड कभी आप लोगों का ऐसा कोई एक फिजिकल मीट भी होगा, सो आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम लोग आपको और अच्छी अच्छी चीजें बता पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू प्रतीक सो मच। Thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. See you. Thank you so much, Bye-bye. sir, for being with us and explaining all our queries. Thank you so much. Thank you so much. जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सबको मैं सबका नाम पढ़ पा रहा हूँ। राधा, ऋतु, सीमा, सोनल, सुप्रिया, मुस्कान, लीना, कस्तूरिका, हिरल, हरलीन, संयोगिता, अर्पिता, श्याम, everyone. Thank you so much. शक्ति भैया, thank you so much. थैंक यू प्रतीक भाई, मिलते हैं ओके, बाय बाय। बाय। पक्का बाय बाय बाय। संयोगिता, ओवर टू यू। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आप हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और यूज़फुल सेशन रहा होगा। हमारे सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही सेशंस हम करवाते रहेंगे और वॉक्सजेट अभी बहुत जल्द ही अपडेट होने वाला है, फेब इन द एंड ऑफ फेब और मार्च तक। इसमें और न्यू फीचर्स आने वाले हैं। जितने भी न्यू जॉकीज हैं मैं उन्हें बता दूं जिनको वॉक्सजेट की फंक्शनैलिटी को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले आप वॉक्सजेट जब भी आप यूज करना शुरू करें, आप ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपका एक सैंपल ऑडियो अपलोड होना चाहिए। सैंपल ऑडियो अपलोड होने के बाद वो ऑडियो अप्रूव हो जाएगा। जब उसके बाद आप वॉक्सजेट में जॉकी एज अ जॉकी अप्रूव्ड होंगे, आप फर्दर ऑडियोज अपने अपलोड कर सकते हैं। वॉक्सजेट हमेशा नए टैलेंट और अच्छे कंटेंट की तलाश में रहता है। अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी और कंसिस्टेंसी में होगी आपकी ऑडियंस, और साथ ही अगर आप में वो ज़ील हमें वॉक्सजेट की टीम को नजर आता है, तो डेफिनेटली वॉक्सजेट उसके लिए कुछ मोटिवेशन हम सबको देगा इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो वॉक्सजेट उसके लिए टैलेंट को हमेशा प्रोत्साहित करता है और वॉक्सजेट के साथ जुड़े रहिए। हाँ, कल जैसे कि क्वेरी आई थी, रिव्यू आया था कुछ लेके इसकी टेक्निकलिटी को लेके, तो वॉक्सजेट अंडर प्रोसेस है अभी इसका सॉफ्टवेयर। कुछ चीजें हर जगह आप देखते ही हैं, कुछ अप एंड डाउन, तो उन चीजों के साथ एडजस्ट करते हुए आप बने रहिए। डेफिनेटली मार्च के एंड तक या फेब के एंड तक हम बहुत सारे न्यू फीचर्स लाएंगे और ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ आएंगी। क्यों शक्ति जी? हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक जैसा आई थिंक श्याम सर ने भी शुरुआत में व्हेन वी स्टार्टेड द सेशन कुछ डिटेल्स बोले थे कि टेक्नोलॉजी वाइज में सम ग्लिचेस आते ही रहते हैं। वो सब बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं। आई थिंक किसी भी ऐप में लेके इवन जब फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जैसी एप्स डाउन हो सकती है, इवन दो लास्ट मंथ गूगल वाज आल्सो डाउन, तो वॉक्सजेट अभी हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया, इट्स बीन 1.5 ईयर। तो आप लोग वॉक्सजेट के साथ जुड़े रहिए। जितना ट्रस्ट, जितना कॉन्फिडेंस आप हमारी कंपनी में फॉर द ऐप आप दिखाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा भी आपकी तरफ बढ़ता रहेगा। आई थिंक संयोगिता जी से काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कंपनी की भी ग्रोथ देखी, उन्होंने हमारी भी ग्रोथ देखी है, अपनी पर्सनल उनकी ग्रोथ भी हुई है, कंटेंट्स में बहुत इंप्रूवमेंट भी आ जाता है। साथ ही साथ में रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन वाला, जैसा हम लोग हर बार करते रहते हैं, इस बार हम लोग आरजे प्रतीक के साथ हम लोग का एक सेशन रहा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और फेमस पर्सनालिटीज को लाने के लिए, ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख सके। जो सीखा हुआ है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा अपने दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स या जहां जहां आप वर्किंग कर रहे हो वहां पे भी आप एटलीस्ट यूज करो। तो प्रोफेशनलिज्म हमेशा वॉक्सजेट के लिए इज ऑन द पीक। आप लोग सब सीखो, आप लोग सब सीखा हुआ हमारे ऐप पे यूज करो एंड वो हम लोग आपको प्रमोट करें। तो हम लोग जितना अपनी साइड से कर सकते हैं वो सब हम फुली कर रहे हैं। आप लोग भी सब इस टाइम तो आई थिंक जॉकीज ऑलमोस्ट हिंदी जॉकीज का हम देखें तो 120 जॉकीज वी हैव क्रॉस्ड इन द लास्ट 3 months, अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। ऐसे ही करके आई थिंक नेक्स्ट 3-4 months में हम लोग 500 जॉकीज क्रॉस कर जाएंगे। तो आप लोग के पास इस टाइम एक गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है कि इनिशियल डेज में ही जितना आप लोग वॉक्सजेट से कनेक्ट कर पाओगे
उतना ही आगे हम लोग सब साथ ही साथ बढ़ते रहेंगे। थैंक जी यू। बिल्कुल, तो फिर जुड़े रहिए आप सभी वॉक्सिट के साथ। बहुत सारी नई चीजें अभी लॉन्च होने वाली हैं जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल होंगी, और ये जितनी भी चीजें हमने आरजे प्रतीक से सीखी हैं वो इसीलिए हमने ये सेशन अरेंज किया क्योंकि वॉक्सिट इज अ टोटली ऑडियो ऐप। तो इस ऑडियो ऐप में हम कैसे डे बाय डे अपने ऑडियो क्वालिटी को बेटर कर सके, अपने स्किल्स को एनहांस कर सके इन द फील्ड ऑफ पॉडकास्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इन द फील्ड ऑफ कंटेंट। तो हम इन चीजों को, इन टिप्स को जो आरजे प्रतीक अभी हमें देके गए, इन टिप्स को अप्लाई करें और वॉक्सिट को एक ऊंचे मुकाम तक लेकर जाएं। क्या पता हम सभी के सपोर्ट से ही वॉक्सिट आगे जाएगा। तो यू नेवर नो आगे हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाती है। तो बस आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। तो इसी के साथ हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी